بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ 3 نوجوان پیچھے پڑ گئے تھے۔ ایک کہتا آ رہا تھا، یار بات سمجھا کرو، ایک نئے عاشق کے ساتھ ہے اس لیے ہم سے انجان بن رہی ہے۔ دوسرے نے کہا، لیکن یہ تو ہماری انسلٹ ہے، اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے ہمیں ٹھکرا رہی ہے۔ علی نے حرم شریف کے باہر قدم رکھتے ہی اس کے منہ پر ایک الٹا ہاتھ رسید کیا۔ ہاتھ کیا تھا؟ لوہے کی سلاخ تھی۔ وہ چیخیں مارتا ہوا دور جا کر گر پڑا۔ وہ عیاشی کرنے والے جوان دبلے پتلے نازک سے تھے، لڑنا نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے ذرا دور بھاگ کر پتھر اٹھا کر مارنا شروع کیا۔ علی نے ثانی کو پتھروں سے بچانے کے لیے ڈھال بننے کی کوشش کی، زخمی بھی ہوا، لیکن 3 اطراف سے پتھر آ رہے تھے۔ وہ ثانی کے ساتھ دوڑتا ہوا حرم شریف میں واپس آیا۔ اپنی جان حیات کو دیکھا تو وہ بھی زخمی ہو چکی تھی، پیشانی سے لہو بہہ رہا تھا اور وہ ان بھگوڑوں کو گھور رہی تھی جو بہت دور جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک پولیس آفیسر اور کئی سپاہی آ گئے تھے۔ علی نے اپنا کارڈ دکھایا تو سب نے الرٹ ہو کر سلوٹ کیا۔ وہ بولا، تینوں رئیس زادے ادھر کھڑے ہوئے ہیں، انہیں پہچانو اور گرفتار کرو۔ یہ گرفتار نہ ہوئے تو تم سب کی وردیاں اتار لی جائیں گی۔ وہ تینوں بھاگنے لگے۔ سپاہیوں نے ان کے پیچھے دوڑ لگائی۔ ثانی کے سر پر سخت چوٹ آئی تھی۔ علی اپنی چوٹیں بھول گیا، اسے سہارا دے کر گاڑی میں لے آیا۔ وہ دونوں فولاد تھے، ایسی چوٹیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھیں، لیکن ایمان اور عقیدے سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے علی کی دعا قبول کر لی تھی۔ ثانی کو کمزوری میں مبتلا کر دیا تھا۔ جب لیلا آئی تو علی اور ثانی گولڈن برین واسکو ڈی تھرما کے بنگلے میں آ گئے تھے۔ تھرما نے ڈاکٹر کو کال کیا تو لیلا نے کہا، علی تمہارا ایمان اور تمہارا جذبہ صادق ہے، خدا نے تمہاری سن لی ہے۔ ثانی کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس کی واپسی کا اہتمام قدرت نے کیا ہے۔ جب ڈاکٹر مرہم پٹی کر کے چلا گیا تو لیلا چپکے سے ثانی کے دماغ میں آ گئی، اسے تھپک تھپک کر سلایا، پھر اس پر عمل کرنے لگی۔ خدا جب کسی شخص یا کسی قوم کو دولت اور قوت دیتا ہے تو کبھی برسوں تک اور کبھی صدیوں تک اس کا ظرف آزماتا ہے۔ روس نصف صدی سے زیادہ عرصے تک کے لیے سپر پاور رہا، مگر اس کی کم ظرفی نے اسے توڑ دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کا بھی جلد یا بدیر کچھ ایسا ہی انجام ہونے والا ہے۔ دانش مندی تو یہ ہے کہ ہم اپنے ہی اسلامی ممالک کا جائزہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرق وسطیٰ کی تمام مسلمان ریاستوں کو تیل کی اتنی بڑی دولت دی جس کی مثال دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ملتی ہے، لیکن اس دولت سے کوئی ایسی فوج تیار نہیں ہوئی جو اسرائیل کے مقابلے میں ایک دن کی بھی جنگ لڑنے کے قابل ہو۔ اس دولت سے جدید اسلحے کی کوئی فیکٹری نہیں بنائی گئی۔ ان ریاستوں میں سے کسی نے اس دولت سے کسی مسلمان کو ریاضی داں اور سائنسداں نہیں بنایا، بلکہ اپنی پوری قوم کو امریکہ کا دوست اور وفادار بنا دیا۔ امریکہ ان کی دوستی اور وفاداری کی قدر اسرائیل کے بعد کرتا ہے۔ افغانستان جیسے اسلامی ملکوں کو خانہ جنگی میں مبتلا کر کے اس قدر کھوکھلا کر دیا جاتا ہے کہ وہ کسی بڑے ملک کے سہارے کے بغیر اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتے۔ اب میری داستان جس نو آزاد اسلامی ملک سے گزرنے والی ہے اس کا نام ازبیکستان ہے۔ اس اسلامی ملک پر ساری دنیا کے عیسائیوں اور یہودیوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں یہودی اپنی مذہبی شناخت سے نہیں بلکہ کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر اور ورکر کی حیثیت سے غلبہ پانے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ میں جانتا ہوں میرے قارئین بڑی معلومات کے حامل ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ داستان کا تقاضا ہے میں یہ بتاتا چلوں کہ مغربی ممالک ازبیکستان پر اثر انداز کیوں ہونا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی اور ناقابل انکار حقیقت یہ ہے کہ مغربی ممالک کبھی اسلامی ممالک کو متحد ہونے نہیں دیں گے، اور اپنے انجام سے بے خبر مسلمان خود کبھی متحد نہیں ہوں گے۔ پھر یہ کہ خدا نے جس طرح مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک کو تیل کی دولت دی ہے، اسی طرح ازبیکستان کو سونے کا ذخیرہ دیا ہے۔ یہاں سونے کی کانوں سے تقریباً 40 ٹن سونا سالانہ نکالا جاتا ہے۔ قدرتی گیس، کوئلے اور دیگر دھاتوں کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں، اور 80% اعلیٰ درجے کی کپاس یہیں پیدا ہوتی ہے۔ یہاں ایسے سائنسی ادارے ہیں جہاں 40 لاکھ افراد کام کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ فن میں اس قدر آگے ہیں کہ زلزلہ پروف عمارتیں تعمیر کرتے ہیں۔ ایسی عمارتیں اب تک 20 زلزلوں کے شدید جھٹکے برداشت کر چکی ہیں۔ ایسے ذہین، جیدار اور قدرتی دولت سے مالا مال مسلمان مغربی ممالک کی نظروں میں یقیناً کھٹکتے رہیں گے۔ انہیں شیشے میں اتارنے کے لیے بین الاقوامی سیاست کی بساط پر جو چالیں چلی جا رہی ہیں اس کی کچھ جھلکیاں اس داستان میں ملتی رہیں گی۔ میں نے مرینا کے چور خیالات پڑھے تھے، وہ ازبیکستان جانا چاہتی تھی۔
उसकी वजूहात ये थीं कि वो रूस के करीब तर रहकर एवन रास्का के जरिए अपनी एक टेलीपैथी जानने वालों की टीम बनाना चाहती थी। अब तक 2 टेलीपैथी जानने वाले जनरल पार्किन और बीजी थर्मॉल उसकी मुट्ठी में आ चुके थे। दूसरी वजह यह थी कि वो मुझसे दूर रहना चाहती थी। मैंने उसे कहा था कि मैं तिब्बत से वापस अफगानिस्तान पारस के पास जाऊंगा। तब उसने कहा था, पापा आप मुझे उज़्बेकिस्तान के किसी सरहदी शहर में ड्रॉप कर दें, मुझे वहाँ कुछ ज़रूरी काम है। मैं उस हेलीकॉप्टर में उसे ले गया जो मैं अफगानिस्तान से लेकर आया था। अभी 9 आज़ाद मुल्कों की सरहदें मजबूत नहीं थीं। ऐसे ममालिक में दाखिल होते वक्त कोई ख़ास परेशानी नहीं होती है। अगर होती तो हम टेलीपैथी के ज़रिए बिगड़ी बना सकते थे। मैंने एक मशरकी शहर फरगाना के करीब उसे हेलीकॉप्टर से उतार दिया और थोड़ी देर के लिए इंजन को बंद कर दिया। वो बोली, आपने ये नहीं पूछा कि मैं पारस से मिलने आपके साथ क्यों नहीं जा रही हूँ। मैंने जवाब दिया, ये तुम्हारा और पारस का मामला है, मुझे कोई सवाल नहीं करना चाहिए। आप एक सवाल का सही जवाब देंगे? मैं तो सही जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी सच्चाई का यकीन नहीं आएगा। तुमने कभी किसी पर भरोसा करना सीखा ही नहीं है। चलें यही सही, आपको ये कैसे मालूम हुआ कि मैं तिब्बत में हूँ और ख़तरात में घिरी हुई हूँ? तिब्बत में मेरे कई आलाकार हैं, उनमें से एक ने मुझे दरसगाह के इंचार्ज के दिमाग में पहुँचा दिया था। आप अपने बेटे पारस की कसम खाकर कहेंगे कि मुझ पर तनवीमी अमल नहीं किया है और मेरे दिमाग में नहीं आते। तुमने मेरा पूरा रिकॉर्ड पढ़ा है, इसमें यह लिखा हुआ है कि मैं कभी कसम नहीं खाता और इस फिक्र में दुबला नहीं होता कि कसम के बगैर अगला मुझ पर यकीन कर रहा है या नहीं। तो फिर कसम के बगैर ही मेरे सवाल का जवाब दें। मैं तुम्हारे दिमाग में आया करता था। जब से तुमने आत्मा शक्ति हासिल की है तब से तुम्हारा दिमाग मेरी गिरफ्त से निकल चुका है। मैंने एक बार चुपचाप तुम्हारे पास आने की कोशिश की थी, तुमने सांस रोक ली थी। वो मुतमईन और खुश हो गई। मैंने कहा, पारस ने मुझे बताया था कि तुमने उससे राबता किया था और वादा किया था कि इस्लाम कबूल करोगी। बेशक मैंने आपका दिल दुखाया था, मैं इसी तरह तलाफ़ी कर सकती हूँ, आपका दिल जीत सकती हूँ और मेरी जान बचाकर तो आपने मुझे ख़रीद लिया है। मैं आप लोगों की हूँ। पारस को कोई पैगाम दोगी? आप उससे कह दें कि उसी की मौजूदगी में उसका मज़हब कबूल करूँगी। शर्त यह है कि वो उस अफ़गानी दोशीज़ा को छोड़कर मेरे पास आए। मैंने मुसाफहे के लिए हाथ बढ़ाया। वो अलविदाई मुसाफहा करके जाने लगी। जब वो दूर निकल गई तो मैंने इंजन स्टार्ट किया। गर्दिश करने वाले पंखे की तूफ़ानी हवाएं दूर मरीना तक पहुंच रही थीं। उसकी जुल्फ़ें और लिबास हवा की जद में लहरा रहे थे। मेरा हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में बुलंद होता हुआ उससे दूर होता चला गया। मरीना को पूरा यकीन हो गया था कि मुझसे पीछा छूट गया था। वो मौजूदा तमाम टेलीपैथी जानने वालियों में सबसे ज़हीन और मक्कार थी। अभी सानी से उसका पाला नहीं पड़ा था। ये बड़ी सुपर ताकतों को चक्कर देती आ रही थी, कभी किसी के काबू में नहीं आती थी। इस बार महालामा के हाथों मारी जाती। मैंने इसलिए ऐन वक्त पर बचाया था कि मैं इब्तदा से उसके हवास पर छाया हुआ था। इस बार काम आकर मजीद उसके दिमाग में नक्श हो गया था। वो मेरा नाम ही सुनकर एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाती थी। इसलिए जब उसे मालूम हुआ कि मैं अफ़गानिस्तान जा रहा हूँ तो उसने उज़्बेकिस्तान को अपनी मंजिल बना लिया। मैंने उसे फरगाना तक पहुँचा दिया था, लेकिन मुझे उज़्बेकिस्तान में किसी भी दुश्मन इस्लाम की मौजूदगी गवारा नहीं थी। इसकी अहम वजह अभी बयान करता हूँ। यहाँ के मुसलमानों को 1-2 बरस से नहीं 70 बरस से ग़ुलाम बनाकर रखा गया था। उनकी दीनी ज़िंदगी पर कानूनी पाबंदियाँ आयद कर दी गई थीं। बेशुमार उलमा को तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया था। नमाज और कुरान मजीद पढ़ने वालों को सताया जाता था। मुख्तलिफ हेलों बहानों से उन्हें आहनी सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता था। दीन का प्रचार करने वालों को शदीद मसाइब में मुब्तला रखने के लिए साइबेरिया भेज दिया जाता था। वहाँ के मुसलमान अपनी ज़ुबान अरबी रस्मुल ख़त में लिखा करते थे, उसे रूसी रस्मुल ख़त में तब्दील कर दिया गया था। कम्युनिस्ट हुक्मरानों ने दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ लाखों किताबें शाया की और उन्हें घर घर तकसीम करते रहे। ऐसे आजमाइशी हालात में 70 बरसों तक यहाँ के लोग कुफ्र के नरगे में रहे, फिर भी उनकी अक्सरियत मुसलमान ही रही। ये इस बात का खुला सबूत है कि खुदा अपने दीन की खुद हिफाजत करता है। आज़ाद होने के बाद दुश्मनाने इस्लाम को उनकी हर चाल का जवाब दिया जा रहा था। अब वो दोबारा अरबी रस्मुल ख़त शुरू कर चुके हैं। कुरान मजीद की तालीम आम की जा रही है। हर मदरसे, स्कूल और कॉलेज में इस्लामी तालीमात लाजमी करार दी गई हैं। शहरों या देही इलाकों में कोई खिलाफ़े इस्लाम हरकत हो तो इस्लामी पासबानों के दस्ते उसकी रोकथाम करते हैं। गोया उज़्बेकिस्तान में अभी कुफ्र और इस्लाम की जंग जारी थी। ऐसे में मरीना वहाँ पहुँची थी।
वो दूसरे तमाम मज़ाहिब को मजाक समझती थी। कोई सा भी मज़हब कबूल करके उसे छोड़ देना उसके लिए महज एक खेल था। उसे मुसलमानों से खुदा वास्ते का बैर था। उसने टेलीपैथी जानने वाले वार्नर हेग को इस्लाम कबूल करने की सज़ा दी थी। आइंदा पारस को धोखा देने के लिए नुमाइशी तौर पर इस्लाम कबूल करना चाहती थी। ऐसी मक्कार लड़की इस मुल्क में दुश्मनाने इस्लाम के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकती थी। मैंने अफगानिस्तान वापस जाने का इरादा तर्क कर दिया। पारस से राबता कायम करके उसे मरीना के हालात और ख्यालात बताए। फिर कहा, मरीना फरगाना गई है, ताशकंद वहाँ से 100 किलोमीटर के फासले पर है। मैं ताशकंद में क़याम करके उसकी मसरूफियात पर नज़र रखूँगा। ठीक है पापा, आप वापस ना आएँ, मैं आपके पास जल्द आऊँगा। पारस वहाँ तूबा खानम के साथ था और बड़े ही काबिल ज़िक्र हालात से गुज़र रहा था। मैंने सलमान को मुखातिब करके कहा, पारस के पास आते जाते रहो, उसे किसी वक्त भी हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। भाईजान आप फ़िक्र ना करें, मैं पारस से राबता रखूँगा। फ़िक्र तो होती है, पारस की नहीं करूँगा तो तुम्हारी करूँगा। मेरी फ़िक्र किस लिए? मियाँ, सुल्ताना माँ बनने वाली है, तुम्हें बाप बना रही है। ये फ़िक्र की नहीं, खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात तो है, लेकिन लैला मुझे बता रही थी कि तुम्हारी बेगम बड़ी फ़िक्रमंद रहती है। उसने मुझे नहीं बताया और आपको मालूम हो गया? भाई, बहुत सी बातें औरतें अपने मर्द को नहीं बताती। सुल्ताना अपनी बहन यानी लैला से कह रही थी कि वो माँ बनने वाली है। ऐसे दिनों में मर्द आवारा हो जाते हैं, अपनी खाली रातें दूसरी जगह गुजारते हैं। क्या सुल्ताना मेरे मुतल्लिक ऐसी राय रखती है? मुझे आवारा समझती है? फिर वो चौंक कर बोला, अरे भाई जान, आप फिर मियाँ बीवी को लड़ाने वाली बातें कर रहे हैं। शैतान को भगाने के लिए लाहौल पढ़ते हैं, आपके लिए क्या पढ़ूं? मैं मुस्कुराता हुआ दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। हेलीकॉप्टर को पहले ही एक पहाड़ी के दामन में उतार चुका था। वहां से 3 किलोमीटर के फासले पर एक पुख्ता सड़क थी जो ताशकंद को जाती थी। मैंने डैशबोर्ड के एक खाने से एक कागज़ और कलम निकाला। उस पर जली हरूफ में लिखा, एक मुल्क से दूसरे मुल्क आने वाला मेहमान अपने मेज़बानों के लिए तहाइफ ज़रूर लाता है। मैं दुश्मनों से छीना हुआ ये हेलीकॉप्टर तोहफे के तौर पर उज़्बेक मुसलमानों को पेश करता हूँ। मैं वो कागज़ डैशबोर्ड पर एक टेप के ज़रिए चिपका कर हेलीकॉप्टर से उतर गया। फिर वहाँ से पुख्ता सड़क की तरफ पैदल जाने लगा। अब वहाँ गैर कानूनी रिहाइश का मसला था। मैंने फ्रांस के एक आला हाकिम से राबता किया। उसने कहा, फरहाद साहब, हमने अफ़गानिस्तान के हिज़्ब मोमिन के लीडर तक असलहा और माली इमदाद पहुँचा दी है, और फरमाएं। मैंने कहा, आपकी इमदाद का शुक्रिया। मैं ताशकंद शहर में दाखिल होने वाला हूँ। मेरे पास यहाँ रहने के लिए कानूनी कागजात नहीं हैं। आप इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? आप तो जानते हैं उज़्बेकिस्तान में हमारा बाकायदा सफारत खाना कायम नहीं हुआ है। वहाँ हमारा एक सियासी नुमाइंदा और उसके 2 मुआवन हैं। उनके अलावा फ्रांस के 4 बड़े अखबारात के सहाफ़ी, शायर और अदीब हैं। और आप तो दरपर्दा हक़ाइक़ को समझते ही हैं। ये सब फ्रांस के जासूस हैं। आप अभी किसी ख़ास जासूस से फ़ोन पर राबता करें, उसे बताएं कि मैं उसके दिमाग में पहुँच गया हूँ और अब उससे जो काम लूँ उसे वो आपका हुक्म समझकर तामील करता रहे। उसने फ़ोन के ज़रिए ताशकंद में क़याम करने वाले एक जासूस से राबता किया। फिर पूछा, क्या रिपोर्ट है? वो रिपोर्ट पेश करने लगा। मैं उसके अंदर पहुँच गया। वो फ्रांस के एक अखबारी रिपोर्टर की हैसियत से वहाँ क़याम कर रहा था। उसका नाम जैकी हार्प था। उससे कहा गया कि मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ और शायद जैकी हार्प के दिमाग में पहुँच गया हूँ। मैंने कहा, यस जैकी, मैं तुम्हारे पास हूँ। वो मुस्कुरा कर बोला, खुशामदीद मिस्टर फरहाद। फिर उसने आला हाकिम से कहा, मिस्टर फरहाद मुझसे राबता कायम कर चुके हैं। आला हाकिम ने कहा, अपनी टीम के तमाम अफराद से कह दो कि जब भी फरहाद साहब कोई हुक्म दें उस पर फ़ौरन अमल किया जाए और इन्हें हर तरह की सहूलियात फराहम करते रहें। फ़ोन का राबता ख़त्म हो गया। मैंने जैकी हार्प से कहा, तुमने मेरी जसामत और कद देखा है या रिकॉर्ड में पढ़ा है? क्या इसके मुताबिक तुम्हारी टीम में कोई शख्स है? जी, ऐसा शख्स है। मैंने आपको वीडियो कैसेट में मुतहर्रक देखा है। हमारा आदमी शायद कद में आपसे 1 इंच छोटा होगा। क्या ये फ़र्क चलेगा? चलेगा। अगर वो मेरी जसामत और मुशाबहत रखता है तो मेकअप के जुमला सामान का इंतज़ाम करो। मैं उसके ओहदे और कागजात के मुताबिक यहाँ रहूँगा। उसे पेरिस वापस भेज दिया जाएगा। मैं इस सिलसिले में इंतज़ामात कर रहा हूँ। आप इस वक्त कहाँ हैं? मैंने अपने चारों तरफ देखते हुए वहाँ का महल वकू बयान किया। उसने कहा, आप पुख्ता सड़क के करीब इंतज़ार करें, हमारा एक आदमी आ रहा है। वो ग्रे कलर के ओवरकोट और फेल्ट हैट में होगा। उसके हाथ में एक जर्द रंग का रुमाल रहेगा। आप उसे मुखातिब करेंगे और वो आपसे कहेगा, आपने तशरीफ़ लाकर मुश्किल आसान कर दी है।
मैंने ओके कहकर राबता ख़त्म कर दिया। उसकी सोच से पता चल गया कि जो शख्स आने वाला है उसे मेरे पास पहुंचने में शायद 1 घंटा लगेगा। मैं पहाड़ी के दामन में एक चश्मे के किनारे बैठ गया। दूर तक कहीं कहीं बर्फ़ जमी हुई दिखाई देती थी। सर्दी बढ़ने वाली थी, बर्फ़बारी में इजाफा होने वाला था। चश्मे का पानी भी नीम बर्फीला हो रहा था। वहाँ से दूर एक पुख्ता सड़क नज़र आ रही थी। मैं आने वाले अजनबी को वहाँ बैठकर देख सकता था। फिर मैं बैठे बैठे मरीना के पास आ गया। वो फरगाना के एक मज़ाफ़ाती इलाके में थी। उस इलाके में एक चर्च था। वो वहाँ पहुँचकर अपने लिए जगह बना रही थी। उसने 2 घंटे पहले चर्च के एक पादरी से मुलाकात की थी। उससे कहा था कि वो वहाँ राहिबा बनने के लिए आई है। पादरी ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? फादर, अगर मैं अपने मुतालिक कुछ ना बताऊं तो क्या आप मुझे इस चर्च की खिदमत नहीं करने देंगे? तुम ईसाई हो तो ये जानती होगी कि कन्फेशन बॉक्स में जाकर अपनी गलतियों का एतराफ़ करना पड़ता है और ये एतराफ़ चर्च का पादरी सुनता है। अगर तुम एतराफ़ से बचना चाहोगी तो समझ लो, यहाँ इस्लामी हुकूमत है। इस्लामी पासबानों के दस्ते जगह जगह घूमते और इंक्वायरी करते रहते हैं। वो इधर आएंगे तो तुम्हारा मुहासबा करेंगे, फिर तुम उनसे अपनी असलियत नहीं छुपा सकोगी। वो चर्च के दरवाजे पर सर झुकाए खड़ी थी और पादरी के ख्यालात पढ़ रही थी। फिर संजीदगी से बोली, मुझे खुदावंदे यसू ने तुम लोगों की मदद के लिए भेजा है। आसमान की नामालूम बुलंदियों से वो नामालूम बातें मेरे दिल में उतरती हैं जो दूसरों को वक्त से पहले मालूम नहीं होती। तुम्हें ऐसी कौन सी बात मालूम है जिसे हम नहीं जानते? आप जानते हैं, आज से निस्फ सदी पहले कम्युनिस्ट हुक्काम ने मस्जिदों और गिरजों को बंद करा दिया था। इस चर्च में कोई इबादत करने वाला नहीं रहा। जब यहाँ के मुसलमानों ने आज़ादी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और हुकूमत रूस को यकीन हो गया कि उज़्बेकिस्तान आज़ाद होकर ही रहेगा, तो उस वक्त के हुक्काम ने बज़ाहिर मजहबी आज़ादी दे दी, मस्जिदों और गिरजों को खोलने की इजाज़त दी। फिर तुम्हें पादरी बनाकर 10 राहिब और 6 राहबाओं के साथ इस चर्च में भेज दिया ताकि तुम इस नौ आज़ाद इस्लामी मुमलिकत के खिलाफ जासूसी करते रहो। नाम निहाद पादरी ने उसे चौंक कर देखा, घबरा कर आस पास दूर तक नजरें दौड़ाईं। फिर फौरन ही अपने लिबास से एक रिवॉल्वर निकालकर सख्ती से कहा, अंदर चलो, कम ऑन, चलो वरना गोली मार दूंगा। वो उसके आगे चलती हुई अंदर आई। फिर बोली, मिस्टर एंड्रयू, तुम ये रिवॉल्वर खुद ही मेरे हाथ में दोगे? उसने पलटकर एंड्रयू की तरफ हाथ बढ़ाया। एंड्रयू ने वो रिवॉल्वर उसके हाथ में दिया। फिर जैसे ही दिमाग को आज़ादी मिली वो घबरा कर बोला, ये कैसे हो गया? मैंने ये तुम्हें कैसे दे दिया? तुम इस रिवॉल्वर के बदले अपनी जान दे सकते थे। यकीन ना हो तो आजमा लो। उसने रिवॉल्वर वापस किया। एंड्रयू ने झपट लिया। फौरन ही उसकी नाल अपनी कनपटी से लगाकर कहा, खबरदार, अपनी असलियत बताओ वरना गोली मार दूंगा। लेकिन फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी कनपटी पर रिवॉल्वर रखकर उसे कत्ल करने की धमकी दे रहा था। उसने रिवॉल्वर का रुख बदलना चाहा, लेकिन मरीना की समत नहीं हो पा रहा था। उसकी नाल कनपटी पर वापस आ जाती थी। वो खामोश खड़ी उसे संजीदगी से देख रही थी। फिर बोली, अभी मैंने कहा था तुम अपनी जान दोगे और तुम देख रहे हो कि किसी भी लम्हे गोली तुम्हारी कनपटी के अंदर घुसने वाली है। नहीं, मुझे माफ़ कर दो। खुदावंदे यसू ने तुम्हें हमारी मदद के लिए भेजा है, मुझे माफ़ कर दो। वो सख्त लहजे में बोली, खबरदार, अपनी नापाक ज़ुबान से खुदा और मसीह मसलूब का जिक्र ना करो। तुम लोग ईसाइयत को बदनाम करना चाहते हो। तुम लोगों ने चर्च को सुराग रसानी का अड्डा बनाया है। प्लीज़ गुस्सा थूक दो। तुम्हारे जज्बात से समझ गया हूँ कि तुम कट्टर ईसाई हो। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं भी ईसाई हूँ। ये अलग बात है कि तुम्हारे मुकाबले में मेरा ईमान कमज़ोर है। ईमान की कमज़ोरी का बहाना ना करो, ये तुम्हारे पास है ही नहीं। चर्च के पीछे तुम अपनी रिहाइश गाह में छुपकर शराब पीते हो और जिन्हें राहबा बनाया है उनके साथ तुम 11 जासूस अपनी रातें काली करते हो। चर्च के एक हिस्से से गूंजती हुई आवाज़ आई, ए हसीना, तुम बहुत ख़तरनाक हो। तुम्हें इस 4 दीवारी से बाहर नहीं जाना चाहिए। मरीना ने सर घुमा कर देखा। बड़ी सी सलीब के नीचे 2 अफराद राहिबों के सफ़ेद लिबास में थे और उनके हाथों में स्याह गनें थीं। चर्च के दूसरे दरवाजे से मज़ीद 3 राहिब इसी तरह हथियार उठाए दाखिल हुए। उनमें से एक ने कहा, तुम्हारी मालूमात बहुत वसी हैं। ताज्जुब है, बंद कमरों में होने वाले गुनाहों का इल्म तुम्हें कैसे हो गया? चर्च के अंदर बने हुए कन्फेशन बॉक्स से 3 राहिब और निकले। उनकी गनों का रुख भी मरीना की तरफ था। उनमें से एक ने कहा, तुम्हें गोली मारने में देर नहीं लगेगी, लेकिन पहले ये मालूम करना ज़रूरी है कि तुम कौन हो और हमारे तमाम राज कैसे जानती हो। वो घूम घूम कर उन्हें देखते हुए बोली, तुम तादाद में 9 हो, बाकी 2 कहाँ हैं?
एक ने गाली देकर कुछ कहना चाहा। मरीना उसकी जुबान दांतों के दरमियान ले आई। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। ऐसा लगा जैसे अपने ही दांतों के दरमियान उसकी जुबान कट कर रह गई हो। उसने झुंझलाकर अपने साथी को गन के दस्ते से मारते हुए कहा, यू सन ऑफ अ विच, तुम्हें धक्का देने से मेरी जुबान दांतों में आ गई है। मार खाने वाले ने उसके मुंह पर घोंसा रसीद करते हुए कहा, कुत्ते के बच्चे, मैंने धक्का नहीं दिया था। सलीब के पास खड़े हुए शख्स ने पूछा, ये तुम लोग क्यों खामखा झगड़ा कर रहे हो? उसके साथी ने कहा, झगड़ा करने दो, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? यू शट अप, तुम मेरे बाप तक पहुंच रहे हो। उसने एक उल्टा हाथ रसीद कर दिया। उधर उनके दरमियान भी लड़ाई होने लगी। मरीना ने इसी तरह बाकी 3 अफराद को भी एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर किया, लेकिन वो 2-4 को आपस में लड़ाती तो दूसरे 2-4 दिमागी तौर पर आज़ाद होकर सोचते कि वो क्यों खामखा एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। मैंने मरीना की मदद की। उनके दिमागों में घुसकर उन्हें एक दूसरे के ज़रिए ज़ख्मी करने लगा। मरीना समझ रही थी कि वो जिसका दिमाग छोड़कर जाती है वो दिमागी तौर पर आज़ाद होकर भी गुस्से में लड़ाई जारी रखता है, इसीलिए वहाँ तीसरी जंगे अजीम जारी है जो किसी नतीजे के बगैर ख़त्म नहीं होगी। उनका लीडर एंड्रयू उनके दरमियान सुलह कराने के लिए दौड़ता फिर रहा था। एक एक से कह रहा था, रुक जाओ, ज़रा अकल से काम लो, ये लड़की पुरअसरार है, मैं इसे गोली ना मार सका, तुम भी अपने हथियारों से इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। कोई उसकी नहीं सुन रहा था, बल्कि बीच बचाव के दौरान वो भी मार खा रहा था। आखिर थक हार कर मरीना के कदमों में आकर बैठ गया। उसके पांव पकड़कर बोला, मेरी माँ, तू कौन है? मैं तेरी बर्तरी तस्लीम करता हूँ। अगर ये एक दूसरे पर फायरिंग करेंगे तो आवाज़ दूर तक जाएगी, हम कानूनी मामलात में फंस जाएंगे। मैं तुम्हारे पांव पकड़ रहा हूँ, इन्हें मज़ीद पागल होने से रोको। वो थक हार कर गिरते रहे। आपस की लड़ाई रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गई। उसके बाद किसी में इतनी सकत नहीं रही कि उठकर दूसरे को तमाचा मारता। उनके लीडर एंड्रयू ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, देखा तुम लोगों ने, ये लड़की है, हमसे जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है, खाली हाथ है, हमसे लड़ने के लिए एक उंगली भी नहीं उठाई, इसके बावजूद तुम सब ज़मीन चाट रहे हो। उनमें से जो फर्श पर पड़ा हुआ था वो तकलीफ से कराहते हुए उठकर बैठ गया। जो बैठा हुआ था वो खड़ा हो गया। जो खड़ा हुआ था वो लुढ़खड़ाता डगमगाता हुआ मरीना को हैरानी और परेशानी से देखने लगा। एक ने कहा, ये जादू जानती है। दूसरे ने गन संभालते हुए कहा, एक ही गोली में इसका जादू हवा हो जाएगा। एंड्रयू बोला, तुम अहमक हो, अब भी नहीं समझे? मेरे हाथ में रिवॉल्वर है, मैं कई दफ़ा इस पर गोली चलाने की कोशिश कर चुका हूँ मगर नाकाम रहा। मैं नाकाम नहीं रहूँगा। मेरे हाथों में गन चलाने की कुव्वत है, गन में कारतूस हैं, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता, फिर मैं नाकाम कैसे रह सकता हूँ? उसने ये कहते ही मरीना का निशाना लिया। उसके साथ ही घूमकर अपने एक साथी को टारगेट बना लिया। वो एक जगह छुपते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो? गन फेंक दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो छुपने वाला अब उसका निशाना ले रहा था। मरीना ने कहा, अपने हालात पर गौर करो और समझो, जिस तरह तुम सब अभी दस्त बदस्त लड़ाई में मसरूफ़ थे, इसी तरह इन हथियारों से एक दूसरे को मारकर खुद नाबूद हो जाओगे। वो सब सोच में पड़ गए। वो बोली, मैंने तुम में से किसी को अब तक गोली नहीं चलाने दी। फायरिंग की आवाज़ दूर तक जाएगी और यहाँ लाशें पाई जाएंगी तो यहाँ के मुसलमान पुलिस और इस्लामी पासबान के रज़ाकार तुमसे कुत्तों जैसा सलूक करेंगे। उनकी बेबसी और आपस की लड़ाई समझा रही थी कि यही होने वाला है। एक ने कहा, तुम्हारी बात हमारी समझ में आ रही है, मगर ये तो बताओ हम तुम्हारे सामने बेबस क्यों हो गए हैं? मुझे मेरे खुदा ने गैर मामूली ताकत दी है, इस पावर के ज़रिए मैं तुम सब को अपना गुलाम बनाऊंगी। उन सब ने घुटने टेक दिए। एक ने कहा, हम तुम्हारी गायबाना ताकत को मानते हैं और तुम्हारे वफादार रहने की कसम खाते हैं। उनके लीडर एंड्रयू ने कहा, हम तुम्हारे अहकामात की तामील करते रहेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई प्रीचिंग स्टेज पर आकर बोली, मेरा सबसे पहला हुक्म यह है कि यहाँ चर्च में और उसके अहाते में जहाँ असलहा, शराब और बेहया औरतें छुपा कर रखी गई हैं, उन्हें 1 घंटे के अंदर यहाँ से दूर ले जाओ। हम ये ज़ख़ीरा कहाँ ले जाएंगे? तुम लोगों का और कोई खुफिया अड्डा होगा? एक ने कहा, हमारे पास दूसरा कोई खुफिया अड्डा नहीं है। मरीना ने उसके दिमाग को हल्का सा झटका दिया। वो चीख मारकर दोनों हाथों से सर थाम कर लुढ़खड़ाया, फिर एक साथी से टकरा कर गिर पड़ा। वो बोली, जो मुझसे झूठ बोलेगा और आइंदा धोखा देना चाहेगा उसकी यही हालत हुआ करेगी। तुम बोलो एंड्रयू, कोई दूसरा अड्डा है? वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, इतनी देर बाद समझ में आया है कि तुम टेलीपैथी जानती हो। तुम अब तक हमारे दिमागों पर कब्जा जमाती रही हो, मुझे रिवॉल्वर से फायर नहीं करने दिया और इन सब को आपस में लड़ाती रही हो। हाँ,
मैं तुम्हारी खोपड़ियों में घुसकर पेट की आंतें निकाल डालूंगी। इस वक्त एक एक के छुपे हुए ख्यालात को पढ़ रही हूं कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। वो एक शख्स को देखकर बोली, जेकब, तुम सोच रहे हो कि किसी वक्त भी मुझे गाफिल पाकर हलाक कर दोगे? वो जल्दी से अपनी गन को एक तरफ फेंकते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, बेशक मैंने यही इरादा किया था। मैं कान पकड़कर कहता हूं कि तुम्हारे खिलाफ कभी कोई बात दिल में नहीं लाऊंगा। वो दूसरे से बोली, और तुम सोच रहे हो अपना दूसरा अड्डा मुझे नहीं दिखाओगे? वो 10 मील के फासले पर है, मुझे उधर का रुख नहीं करने दोगे? वो जल्दी से बोला, नहीं मैडम, मैं बता रहा हूँ वो अड्डा। बताने की ज़रूरत नहीं, मैं जानती हूँ, वक्त ज़ाया ना करो। फ़ौरन अपनी लघवियात समेट कर यहाँ से ले जाओ। सिर्फ एंड्रयू हमारे पास रहेगा और मेरे अहकामात तुम लोगों तक पहुँचाता रहेगा। लेकिन हम यहाँ ईसाइयों की हैसियत से थे, चर्च से जाने के बाद यहाँ की इंटेलिजेंस को क्या जवाब देंगे? यही कि तुम लोग चर्च के इंतजामात संभालने के काबिल नहीं थे, इसलिए अब महज ईसाई शहरी बनकर रहोगे। चर्च का इंतज़ाम दूसरे फादर संभालेंगे। फिर उसने एंड्रयू से कहा, तुम्हारे चोर ख्यालात ने बताया है कि फरगाना में एक निहायत ईमानदार फादर रहते हैं। वो एक बार यहाँ इबादत के लिए आए थे। तुम लोगों के इबादत करने के तरीक़ों पर एतराज़ किया था, क्योंकि तुम सब सही तौर से इबादत करना जानते ही नहीं। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तुम लोगों ने उस बेचारे को यहाँ से भगा दिया था। मैडम, आपसे कोई बात छुपी नहीं रह सकती। मैं उस फादर से माफ़ी मांग लूँगा। सिर्फ माफ़ी नहीं मांगोगे, उन्हें इज्जत के साथ यहाँ लाओगे। मैं ये चर्च उनके हवाले करूँगी। उसके अहकामात की तामील करने के लिए एंड्रयू शहर की तरफ गया और उसके दूसरे साथी वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटने चले गए। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मुझे दूर सड़क पर एक गाड़ी रुकती हुई दिखाई दी। मैं चश्मे के पास से उठ गया। उस गाड़ी में से एक शख्स बाहर आया। वो ग्रे कलर के ओवरकोट और फेल्ट हैट में था और उसके हाथ में जर्द रंग का एक रुमाल था। जैकी हार्प ने मेरे पास आने वाले की यही निशानियां बताई थीं और एक मखसूस कोड भी था। मैंने तेज़ी से चलते हुए उसके करीब आकर कहा, हेलो मिस्टर। उसने मुस्कुराकर कहा, आपने तशरीफ़ लाकर मुश्किल आसान कर दी है। उसने कोड के तौर पर सही फ़िक्रा अदा किया था। मैंने उससे मुसाफहा करते हुए कहा, मुझे इत्मीनान हो गया है। मुझे सिर्फ पहली मुलाकात में शनासाई की ज़रूरत थी, बाकी मैं उसके ख्यालात पढ़कर मालूम कर सकता था। वो मुझे गाड़ी के पिछले हिस्से में लाया। वहाँ एक शख्स बैठा हुआ था। उसने उस शख्स से तारुफ कराते हुए कहा, सर, ये बेब्यूला एंडरसन है। कद और जिसामत में बिल्कुल आप जैसा है, सिर्फ 1 इंच कद कम है। मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, इतना सा फ़र्क चलेगा। हम सब पिछले हिस्से में आकर बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वहाँ मेकअप का सामान और बड़ा सा आईना सब कुछ था। मैंने थोड़ी देर तक बेब्यूला एंडरसन के चेहरे को हर जाविये से देखा, फिर अपने चेहरे पर मेकअप करने लगा। उससे कहा, अपने मुतालिक बताते रहो, यहाँ कितने दिनों से हो, कितने मर्दों और औरतों से खासी जान पहचान हुई है और उनसे किस तरह की बातें हो चुकी हैं। वो अपने मुतालिक तमाम बातें तफसील से बताने लगा। मैं मेकअप करने के दौरान सुन रहा था और अहम बातें ज़हन नशीन कर रहा था। इंसान को पिछली तमाम बातें पूरी तफसील से याद नहीं रहती, वो कुछ भूल भी जाता है। फिर उसकी ज़ात से वाबस्ता कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वो किसी के सामने ज़ुबान पर नहीं लाता। उस वक्त मैं मेकअप पर तवज्जो दे रहा था, इसलिए उसके ख्यालात नहीं पड़ रहा था। ड्राइवर से कह दिया था कि वो सुस्त रफ्तारी से ड्राइव करे और ताशकंद पहुंचने में ज़्यादा देर लगाए। उसने यही किया। यूं तो 1 घंटे ही में मेकअप हो गया था, लेकिन फाइनल टचिंग करते करते 1.25 घंटे लग गए। बेब्यूला एंडरसन और दूसरे मेज़बान मुझे हैरानी और तारीफ़ी नज़रों से देख रहे थे। एक ने कहा, सर, आप कमाल के फ़नकार हैं। बेब्यूला को पैदा करने वाली माँ भी आपको देखेगी तो धोखा खा जाएगी। बेब्यूला ने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को आईने में देख रहा हूँ। यह आप नहीं हैं, आईना है और सामने मेरा अक्स है। मैंने कहा, और यह अक्स तुम्हारी ही आवाज़ और लहजे में बोल रहा है। सर, हमने आपके मुतालिक जो कुछ सुना था, आप उससे भी ज़्यादा ही हैं। आप ज़रा फिर मेरे लहजे में बोलें। मैंने कहा, अब तो मैं जब तक यहाँ रहूँगा तुम्हारी ही आवाज़ और लहजे में बोलता रहूँगा। क्या हम ताशकंद में दाखिल हो गए हैं? मुझे खिड़की के बाहर शहरी मनाजिर दिखाई दे रहे थे। एक ने कहा, जी हाँ, हम ताशकंद पहुँच गए हैं। ये फवारों का शहर कहलाता है। बेब्यूला बोला, उज़्बेक ज़ुबान में ताशकंद के मानी है पत्थरों का शहर। कदीम ज़माने में हमला आवरों से महफूज रहने के लिए शहर के अतराफ पत्थरों की फसील खड़ी की गई थी, तब से ये नाम पड़ गया है। मैं उसकी बातें सुन रहा था और खिड़की के बाहर उस खूबसूरत शहर को देख रहा था। हम माजी के लेनिन स्क्वायर से गुजर रहे थे।
عوام نے آزادی کے بعد اس کا نام آزادی اسکوائر رکھ دیا تھا۔ جدید عمارتوں کے ساتھ قدیم اسلامی طرز کی عمارات بھی نظر آ رہی تھیں۔ وہ عمارات بھی نظروں سے گزریں جہاں 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد تاشقند معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے اور بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کی موت واقع ہوئی تھی۔ میں نے بیبولا اینڈرسن سے کہا، مجھے ان تمام جگہوں پر لے چلو جہاں سے تم گزرتے رہے ہو۔ اس دوران میں لباس، جوتے اور شیونگ کا سامان وغیرہ خریدتا رہوں گا۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔